والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان بیبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم نے پھر ایک بار کرم فرمایا، ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھ کر اپنا ذکر اور اپنے پیارے حبیب فخر دو عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ خوشی ہوئی، عباسی صاحب کی محبت تھی۔ میں نے کہا تھا کہ سردیوں کے دن ہیں، تھوڑا سا وقفہ بڑھاتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت تھی کہ کھینچ لائے، اور آپ بھی نیند کو چھوڑ کر، سکون کو چھوڑا، بستر چھوڑے، اس سردی کے موسم میں یہاں آئے۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، یہ میرے مالک کا فضل ہے۔ جب اللہ کریم خوش ہوتا ہے نا، وہ انسان سے اچھا کام کروا لیتا ہے۔ آپ کے اور بھی دوست ہوں گے، محلے دار بھی ہوں گے، قریب بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک کے مقدر میں یہ نہیں ہے۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، جتنی دیر سے بیٹھے ہیں، دو ہی کام ہیں، یہ ذکر خدا، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم یہ لمحے قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائے، چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ حافظ صاحب بڑی محبت اور ترنم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رفت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ محبت ہوگی تو پھل ملتا ہے، اور اس میں شعر بھی پڑھا، اور جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے یوں کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معنی یہ تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وفا کی، تو تم سرخرو ہوگے، کامیابیاں تمہارا قدم چومیں گے۔ آج لوگ ممتاز قادری کو سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ امیر المجاہدین کو لوگ خراج تحسین کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا کام تھا؟ کیا کرتے رہے؟ صرف آپ سلام کی عظمت کا ڈنکا بجایا۔ آج پوری دنیا کے لوگ اہل محبت آپ سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ نے دنیا کو چھوڑا، لوگوں نے لاہور کی سرزمین کو بتایا کہ اگر انہوں نے نبی سے وفا کی ہے تو ہم نبی سے بابے سے وفا کی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا کمال اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے عالم دین بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب تھی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت انہیں حاصل تھی۔ ان کے جملے جیسے بھی ہوتے تھے نا، بالکل سادہ جملے، لیکن دل میں پیوست ہوتے تھے۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اس نبی کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ہم میں بھی وہ محبتیں، وہ عشق نصیب فرمائے ہے۔ عشق دریت جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، ہے عشق دریت جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ یہ وہ محبت، یہ وہ عشق کی داستان ہے
कोई आलिम दीन कर ले, रब उसे सुरखरू करता है। कोई एक सादा अनपढ़ कर ले, नबी से मोहब्बत, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क जो भी करता है, मेरा मालिक उसे कमाल रिफ्तों से नवाजता है। और ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह करीम हमें भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क नसीब फरमाए। और ये सिर्फ ज़बान ही नहीं, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ, जिस गली में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने तो अपने बेगाने भी जब आपको देखे तो ये कहने पर मजबूर हूं, ये भी मेरे नबी का गुलाम जा रहा है। हमारी अदाएं अच्छी हों, हमारे तरीके ठीक हों, हमारा बोलना अच्छा हो। ये क्या है? नमाज पढ़ते हैं, हमारा बोलना ठीक नहीं है, रोजा रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, हज करके आते हैं फिर लोगों को धोखा देते हैं। वो हज कैसी, वो हमारी नमाज कैसी, वो हमारी बज़म कैसी कि एक अच्छी बज़म सजाकर फिर हम जाकर माँ बाप को खफा करते हैं, दोस्तों को धोखा देते हैं, लूटते हैं। फिर समझना नमाज तो पढ़ी, हक अदा नहीं किया, रोजा रख लिया, लेकिन जो मकसूद चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ। और मैंने आपके सामने जो छोटा सा हिस्सा तिलावत किया, अल्लाह करीम ने इसमें पता है किन लोगों से बात की? उन लोगों से बात की जिन्होंने कलमा पढ़ा और हमें ये बतलाया तुम मामने ही हो, तुम तो मेरे यार के गुलाम हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूला। बड़ी प्यारी बात, अल्लाह हमें ईमान वाला फरमाता है कि तुम तो ईमान वाले हो, तुमने मुझे वादा ला शरीक माना, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना। तुम्हें ये जचता नहीं है कि हो मेरे नबी के गुलाम, अपने गले में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा डाला हो, फिर तुम रब से खयानत करते हो, फिर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत करो, या कोई तुम्हारे पास अमानतें रखी जाए उसमें खयानत करो। माना यह है, अल्लाह फरमाता है तुम्हें खयानत जचती नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, तुम तो ईमान वाले हो। अच्छा, हमें ईमान वाले कहकर मुखातिब करता है, दरअसल बताना चाहता है तुम मेरे यार के नौकर हो, ये तुम्हें जचता नहीं है। खयानत क्या है? अल्लाह से क्या खयानत है? मुफस्सिरीन ने बहुत कलाम किया। अल्लाह करीम करोड़ों बरक़ात का नज़ुल फरमाए उनकी मरकज़ अनवर पर, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कुरान को समझना आसान बनाया। अल्लाह से खयानत क्या है? जब फर्ज छोड़ते हैं तो समझना फिर रब से खयानत कर रहे हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ रहे हो तो फिर अपने हबीब से खयानत कर रहे हो। इसका कुछ पस मंजर यूं है, अबू सुफियान जब ये काफिला लेकर जा रहा था ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में जाग रहे हैं। हमारी ये आज ही हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करते, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं कुछ लेट आया। आप शायद काफी देर से इंतजार करते रहे होंगे। दिल नहीं था कि हम आपको लेट करते, लेकिन कुछ अल्लाह को मंजूर था, हम ताखीर से आए। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि आप तशरीफ फरमा रहे, बैठे रहे, लेकिन आम जगह पे नहीं, मालिक के घर में, अपने रब्बे करीम के घर में। एक ही ख्वाहिश थी कि रब राजी होगा, रब का जिक्र होगा, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। यहाँ कमी नहीं है। ये सरगोदा एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, इमाम भी हैं, आप बातें सुनते रहते हैं। लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमारी ये तमन्ना होती है हमारी ज़ुबानों पर ज़िक्र खुदा भी हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान का काफिला आ रहा है। वो मानते नहीं थे ना, अल्लाह की तौहीद का ऐलान नहीं किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ऐलान नहीं किया था कि उनके पास माल है, इन्होंने माना नहीं है, जहाँ गुलामों को हुक्म दे वो उनसे वो माल ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को फरमाया अबू सुफियान लश्कर लेकर जा रहा है, उसके पास बड़ा माल है, लेकिन ये किसी को ना बताना। तो कुछ नए लोग भी थे, कुछ नए लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनके ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थी। उन्होंने पैगाम भेजा चोरी चोरी कि जाकर बताएं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ रहे हैं, आप अपने लश्कर की हिफाजत करें ताकि तुम महफूज रहो मुसलमानों से। जब ये मैसेज भेजा ना, आपने तो फरमाया था किसी को बताना नहीं, इस बात को छुपाना है। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया कि गुलाम मेरे हबीब के हो,
कलमा मेरे यार का पढ़ा हो, फिर हबीब की बातों को लोगों तक पहुंचाते हो। फरमाया ये गुलामों को जचता नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला, दावा मोहब्बत का करते हो, दावा प्यार का करते हो, दावा करते हो कि हमने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को वादहू ला शरीक माना, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना। फरमाया फिर तुम्हें ये जचता नहीं है, जो बात अल्लाह के नबी कह दे फिर वो कर गुजरो, जो हुक्म फरमा दे वो कर गुजरो। बनु कुरैजा बड़ी मशहूर बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके गुलाम ने उस कबीले के घेराव कर लिया, बनु कुरैजा का। तकरीबन 2 हफ्ते या कुछ दिन ये घेराव जारी रहा, कोई चीज अंदर नहीं जा सकती थी। ये लोग डर गए, खौफ हुए। इनका जो सरदार था ना, काब बिन असद, इसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। किसने? उनके सरदार काब बिन असद ने इकट्ठा किया और कहने लगा मेरी एक राय है आप लोगों से, पहली बात तो ये है हम इसको अल्लाह का रसूल मान लें। ये जिन्होंने घेराव किया है ना, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और ये बात आपकी किताब में लिखी हुई है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो तुम इनको अल्लाह का रसूल मान लो और इनकी बैत करते हैं। फिर हमें फायदा ये होगा, हमारी जान हमारे माल महफूज रहेंगे, हमें फिक्र नहीं होगी। उन्होंने कहा हमें ये बात कबूल नहीं है। फिर उसने दूसरी बात की, उनके सरदार ने, बनु कुरैजा के जो सरदार थे, वो कहने लगे अच्छा अगर ये नहीं करते फिर दूसरी राय मेरी ये है। सरदार था ना, बीवियों को कत्ल करते हैं, बच्चों को कत्ल करते हैं, फिर तलवार को निकाल लेते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते हैं, या जीत जाएंगे या हार जाएंगे। तो वो जो कबीले के लोग थे वो कहने लगे अच्छा अगर हम जंग लड़ते हैं जीत जाते हैं, फिर जीतना किस काम का, ना दुनिया में बीवी होगी ना बच्चे होंगे, फिर जी के करना क्या है, हमें यह बात भी कबूल नहीं है। उसने कहा फिर तीसरी बात यह है, फिर आए अल्लाह के नबी से सुलह करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते हैं, सुलह करते हैं। ये चंद लोग इकट्ठे हुए, तेरे और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में आए। फिर इनके एक अजीज थे करीबी बनु कुरैजा के, अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला, ये इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ भेज दें। आपने फरमाया ये बात नहीं है, एक ही बात है, या अल्लाह को वादहू ला शरीक मानो, मुझे आखिरी रसूल मानो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, बस और अब कोई बात नहीं। ये वापस चले गए मशवरा करने के लिए। तो जब हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वहां गए ना, वहां मर्द खवातीन इकट्ठे हुए, वो रोने लगे हमें बचा लो, तुम वहां करीब हो। तो उन्होंने कहा कलमा पढ़ लो तो बच जाओगे, कलमा पढ़ लो फायदा होगा। दिल पसीज गया। उन्होंने कहा अगर हम कलमा नहीं पढ़ते, हम किले से बाहर निकलते हैं, लड़ाई करती हैं, तो फिर इशारा किया, बताया नहीं, राज भी रखना चाहते थे, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी खवातीन के रोना देख कर ना दिल पसीज गया। इशारा किया अगर तुम नहीं मानते ना फिर तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी। हजरत अबू लुबाबा खुद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया मेरी जुबान से जब जुमले निकले ना, अभी मैंने कदम नहीं उठाया था, ये बात मेरे दिल में जम गई। अबू लुबाबा तूने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है, क्योंकि ये तो राज था, ये तो वहां मशवरा था कि इन लोगों के साथ क्या सलूक करना है। आप फरमाते हैं मैं वापस लौटा, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ, सीधा आकर ना मस्जिद में अपने आप को एक सतून के साथ बांध लिया। किसके साथ? आए गुलामों का काम देखें। आज भी आज दफा लोग मुतफक्किर होते हैं, नऊज बिल्ला सहाबा किराम ने हक खाया होगा। यार वो एक छोटी सी गलती, छोटी सी कोताही भी सरजाद होती ना, उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, कबूल नहीं करते थे। आपने आकर अपने आप को सतून के साथ बांध लिया। और पता क्या कहते हैं, जब तक अल्लाह करीम मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा ना, मैं अपने आप को आजाद नहीं करूंगा। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जब नमाज का वक्त होता घर वाले आते उसे छोड़ देते, वो नमाज पढ़ते, फिर हाजत होती उसके लिए छोड़ देते, फिर वो अपने आप को बांध लेते। कुर्बान जाऊं तेरे और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया अबू लुबाबा अगर मेरे पास आता ना, मैं अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करता, लेकिन ये नहीं आए थे, इन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमने भी फिर रब्बे करीम पे छोड़ दिया है, देखा जाए कि क्या होता है। आप फरमाते एक दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, 6 रातें गुजर गई, न खाते हैं न पीते हैं, कैसे गुलाम है, क्या मोहब्बत,
क्या प्यार था सहाबा किराम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 दिन गुजरने के बाद 7वीं जब सुबह आई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुस्कुरा रहे थे। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आप बड़े खुश हैं, खैर है, क्या खबर आई है? आज जिसका कलमा पड़ा है, जिसकी बज़म सजा के बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरे गुलाम को बख्श दिया है, अल्लाह ने मेरे गुलाम को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, हक चारिया, नारे हैदरी, या अली। अल्लाह करीम ने मेरे गुलाम को बख्श दिया है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ था, सुबह तहज्जुद का वक्त था, सुबह तहज्जुद का वक्त था, जब ये बातें हो रही थी, आप फरमाती हैं अगर इजाजत हो तो मैं जाके खुशखबरी ना सुनाऊं उस गुलाम को जिसे 1 हफ्ता गुजर गया, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, सिर्फ एक कोताही थी जो सरजद हुई, जैसे भी हुई अल्लाह की क्या मंशा थी, और फिर हमें पैगाम क्या दे के गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शान वाला गुलाम, जब आपने आके पैगाम दिया ना हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने, तो आप फरमाया नहीं, रब की कसम मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, अगर आज छोड़ेंगे तो अल्लाह के रसूल खुद छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए तशरीफ लाए, आपने अबू लुबाबा को छोड़ दिया। पता फिर आपने क्या कहा? आज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद मैं बनु कुरैज़ा उस अपने खानदान में नहीं जाऊंगा, और अपना जितना माल है मैं रब की राह में खैरात कर दूंगा, सदका कर दूंगा, फिर मेरी असल तौबा कबूल है, फिर मेरी मैं सारा माल खैरात कर दूंगा और आइंदा लौट कर अपने कबीले में खानदान में नहीं जाऊंगा। आपने इरशाद फरमाया सारा माल खैरात ना करो, तीसरा हिस्सा कर दो, बाकी रख लो सारा। ये गुलाम थे, एक छोटा सा अमल, तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला, अल्लाह के साथ खयानत न करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत न करो। तो हज़रत अबू लुबाबा फरमाते हैं मेरे दिल में ये बात जम गई कि ये जो राज था ना मैं फाश किया है, मुझसे ये कोताही सरजद हुई, फिर अपने आप को जब तक अल्लाह ने माफी नहीं दी आजाद नहीं किया। एक छोटी सी बात को भी अगर गुलाम कबूल नहीं करते तो बड़ी बातें कैसे कबूल करते होंगे? कतई नहीं। सहाबा किराम ये वो लोग थे जिन्होंने तन मन धन सब कुछ कुर्बान दिया, कर दिया। बाज लोग सहाबा किराम की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पाक की गुस्ताखी कर बैठते हैं, और बाज लोग अहले बैत पाक की मोहब्बत में सहाबा किराम की गुस्ताखी कर बैठते हैं। वो ये नहीं जानते ये सारे शान वाले हैं, जिन जिन का रिश्ता तेरे और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, वो शान वाले, वो अजमत वाले आए अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा करें, मेरे मालिक ये मेरा रिश्ता सलामत रहे, हाँ अगर मैं इससे भटक जाऊं तो मुझे इससे पहले मौत आ जाए। फरमाया ईमान वालों खयानत तुम्हारा मयार नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। किसकी? मुनाफिक की। बड़ी काबिल तवज्जो बात। फरमाया जब वो बात करते तो झूठ बोलता है, बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, अगर अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करता है। ये किन लोगों का म्यार है? मुनाफिकीन का। अल्लाह के हबीब के गुलामों का ये म्यार नहीं है। फिर हम नमाज पढ़ते हूँ फिर झूठ बोलते हो तो फिर सोचना पड़ेगा मैं किस दर्जे पे हूँ। मुसलमान हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, वादा करता हूँ वादा खिलाफी करता हूँ, बात करता हूँ तो झूठ बोलता हूँ, कोई दोस्त अमानत रख दे फिर उसमें खयानत करता हूँ, समझना फिर नबी की गुलामी को अख्तियार नहीं किया। मज़ाक़ब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। ये सरगोदा की सरजमीन, आप इसके करीब बसते हैं, कुछ देहाती माहौल भी है कुछ शहरी माहौल भी है। हमारे यहाँ ना देहातों में कोई इख्तलाफ हो जाए ना, इख्तलाफ थके तो नहीं है, इख्तलाफ हो जाते हैं, हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जो टाइट होते हैं, तकड़े लोग हक नहीं देखते। आए हुजूर का फरमान सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई,
फरमाया सबसे बड़ी खयानत ये है, जाग रहे हैं, सबसे बड़ी खयानत ये है तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आए और वो सच्ची बात करे और तुम उसे झूठा कहो, बात सच्ची कर रहा हो। इख्तलाफ होंदे ने लोगों दे, इख्तलाफ होते हैं, लड़ाइयां झगड़े हो जाते ने ना लोगों के बहते ने, फिर लोग पावर चेक करते ने, उहदे सज्जन कितने ने, ऐदे कितने ने, पर कोई वेखे ना वेखे, इन्ना रब्बा कला बिल मिरसाद, तुम पूरी कायनात से छुप सकते हो, रब्बे करीम से नहीं छुप सकते। अपने रब्बे करीम से आप कितने खुशबख्त हैं कि सर्दी के दिन में, सर्दी के मौसम में बिस्तर को छोड़कर, हीटर छोड़कर, चूल्हे छोड़कर यहां आए, अल्लाह के जिक्र की महफिल में शरीक हुए। सोचना पड़ेगा मैं भी तो नबी का गुलाम हूं, मेरा ताल्लुक किस हस्ती के साथ है। अगर हम ये चाहते हैं, ये सरजमीन तो खुश नसीब है, एक तरफ सयाल शरीफ है, एक तरफ बेरा शरीफ है, एक तरफ वादी यजीद शरीफ है, हम खुशबख्त हो गए। अल्लाह करीम ने सालेहीन की कुर्बत हमें नसीब की, फिर आए अपना मयार वाला पेश करें जो हमें देखे उससे ऐलान करना पड़े ये हमने, ये मेरे नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सुभान अल्लाह। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, मेरा ख्याल यही है कि ही रावी है कि किसी के नमाज को ना देखो कोई नमाजें कितनी पढ़ता है, रोजे का ना देखो कि रोजे कितने रखता है, फरमाया उसको देखो जब बात करते तो बात सच्ची करता है कि नहीं करता, अमानत रखी जाए तो खयानत करता है कि नहीं करता। माना ये हुआ नमाज पढ़ने के बाद अगर हम खयानत करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम झूठ बोलते हैं, फिर नमाज का मकसद हासिल नहीं हुआ, रोजा रखने का मकसद हासिल नहीं हुआ। आज आपको इस सरजमीन पर बैठकर सिर्फ इतने मैसेज देना चाहता हूं, तुम आम तो नहीं हो, अल्लाह में ईमान वाला कहता है कि यार तुम्हारे गले में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा है, मयार तो आला पेश करो। आज हम बस्ती की तरफ क्यों गए? हमने कभी सोचा? मस्जिदों की कमी नहीं है, मार्बल लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, गर्म पानी की सहूलत है, लेकिन जो मन की दुनिया है वो तो गदली है ना, वो भी तो साफ करें ताकि अल्लाह भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। और हमने उसे पीर माना है जो गुलाम मुस्तफा है, जिसकी सीरत मुहम्मदी, जिसका किरदार मुहम्मदी, वो हमारे सर का ताज है। सुभान अल्लाह। कोई लोग उठते हैं, कोई किसी को पकड़ लेता है, देखो जी ये क्या कर रहा है, कोई किसी आमिल को पकड़ता है, ये क्या कर रहा है। हमने उसे पीर माना है जिन्हें दुनिया पीर करम शाह कहती है, हमने उसे पीर माना है जिन्हें दुनिया पीर सयाल कहती है, हमने उसे पीर माना है जिन्हें दुनिया ख्वाजा मोहम्मद अली कहती है, हमने उसे पीर माना है जिन्हें दुनिया ख्वाजा मोहम्मद मासूम कहती है। सोचा आप इतने खुशबख्त लोग, इतनी अजीम सरजमीन सरगोदा की कुर्बो जवार में इतनी अजीम मस्तियां थी, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका चलना कैसा था, उनका मयार कैसा था। अगर हमने माना है तो हमने इन्हें माना है, किसी बंगी को नहीं माना, किसी चिरसी को नहीं माना, किसी शराबी को पीर नहीं माना, हमने उसे पीर माना है जो गुलाम मुस्तफा है। उसका रिश्ता तेरे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, हम उसके गुलाम में। आए जिंदगी आला पेश करें, आप नक्शबंदी हूं या चिश्ती, कादरी हूं या सोरवर्दी, अपनी निस्बत पे नाज करते हुए मयार आला पेश करें। अगर हमारा मयार आला होगा, हमारा किरदार आला होगा, जो हमें देखेगा वो सोचने पे मजबूर होगा कि यार जिसका गुलाम इतना अच्छा है उसका शाह कैसा होगा। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, ये सिर्फ टोपी की बात नहीं है, ये तो ताज है, इसकी कदर करे रब तुम्हें सुरखरू करेगा, रब करीम तुम्हें इज्जत बख्शेगा। आए आज अल्लाह करीम की बारगाह में हम यही दुआ मांगेंगे, मालिक ये जो खयानत वाली वबा है ना, हमें इससे बचाए रखना। लोग बड़े लोग होते हैं, रिस्क दे देते हैं, सोना देते हैं, चांदी रखते हैं, लेकिन अगर दुनिया से चला जाए ना फिर बच्चों को खबर नहीं होती, हम छुपा लेते हैं। अच्छा लोगों बच्चों से छुपाते हैं तो जिसकी बारगाह में जवाब दे होना है उससे कौन छुपाएगा। तुम दोस्तों से छुप सकते हो, भाई के पैसे, भाई की जायदाद, भाई का रकबा, भाई की दुकान, भाई का मकान, तुम चीजें हथिया सकते हो, छुपा सकते हो। बच्चे छोटे हो सकते हैं, वो ताकत में नहीं होंगे, तुम पुलिस के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू
किसी एमपीए के थ्रू कोई कोठी ले लेते हो, मकान ले लेते हो, दुकानें ले लेते हो, सब कुछ ले सकते हो, क्या ये छोड़ना नहीं है? ये घर भी छोड़ना है, ये कोठी भी छोड़नी है, ये दुकानें भी छोड़नी है, ये भरा हुआ गुलशन, अपनी बीवी बच्चे सबको छोड़ के अल्लाह की बारगाह में जब पेश होना है तो फिर नबी के गुलाम बन के जाएं। फरमाया तुम माम नहीं हो, तुम मेरे नबी के गुलाम हो। जिस बात का मैंने आगाज किया था वो ये थी, हम देहाती लोग देखते हैं जिसके पास ज्यादा दोस्त हों हम उसके साथ होते हैं, वो झूठा भी हो हम उसे सच्चा कहते हैं, लेकिन आज जिसका कलमा पड़ा है, जिसकी मोहब्बत का दम भरते हैं, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। आपने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा खाइन वो है, सबसे बड़ी खयानत ये है कि कोई शख्स तुम्हारे पास चल कर आए और अपनी बात बताए और हो वो बात में सच्चा और तुम तो झूठे हो, तुम सच्चे नहीं हो और हमें इल्म भी हो कि ये झूठा नहीं है, फिर हम झूठा कहें। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ी खयानत ये है, और कुरान में हुक्म दिया ईमान वालों का ये म्यार नहीं है, ईमान वालों का ये म्यार नहीं है। फरमाया ला तखूनुल्लाह फरसूला व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, ना तो अल्लाह के साथ खयानत करना, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत करना, और फिर वो अमानतें जिन्हें तुम जानते हो जो तुम्हारे पास रखी जाए, फरमाया उनमें भी खयानत ना करना। क्यों ना करें? सिर्फ इसलिए तुम्हारे गले में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा है। मज़ातब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। हजरत अली शेर खुदा, बड़ी प्यारी बात। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। अब्बासी साहब का कल पेपर भी है। जब ये प्रोग्राम लेने गए थे, ग़ालिबन 29 की डेट थी कि कौन सी डेट थी, इन्होंने ये करीब है, दिन दूर रखते हैं। तो आज मुझे बेटा बता रहा था कि कल इनका पेपर है। मैंने कहा कैसा बेटा है, मुझे आगाह करना चाहिए था, हम और पढ़ा देते। ये इनकी मोहब्बत थी। मेरी बात को अहमियत देते हुए अपने पेपर को नहीं देखा, लेकिन देखना चाहिए। अच्छे बेटे हैं, कराची की सरजमीन से यहाँ आए, बहरा शरीफ की सरजमीन को कबूल किया, और आपका ये खुश नसीब इलाका जिसे सूफ़ी इमाम मिले, दुर्वेश इमाम मिले, उससे और क्या चाहिए। दुआ मांगे करो हमारे सारे बेटे आलिम दीन भी हूँ, वो सूफ़ी भी हूँ, वो नेक भी हूँ, पारसा भी हूँ, वो अल्लाह के वली बने और ज़िंदगी ऐसी हो जो उनके साथ लग जाना उसका दिल भी रोशन हो, वो भी मेरे महबूब के ग़ुलाम हो। मज़ातब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा ग़ुलाम आ रहा है। आज आप तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बात ज़रूर है कि हम भूले हुए लोग हैं, हमारे वो काम नहीं है जो नबी के ग़ुलामों के होने चाहिए। हमारे पास अब वो खुशबू नहीं है। फिर असल में पहले लोग जो होते थे ना, वो बुज़ुर्गों के करीब जाते थे, उनकी महफ़िलों में, उनकी सोहबत में रहते थे, वो आला होते थे। आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। चलो जब जाते हैं तो जो पैगाम मिलता है कम से कम उस पैगाम को तो याद रखें, ताकि जो आपको देखे वो तुम्हारे शेख को सलाम पेश करे कि यार जिसके ग़ुलाम इतने अच्छे हैं उनका शेख कितना अच्छा होगा। ये ज़िंदगी, ये बहारें चंद दिन की हैं, ये रौनकें छोड़ देनी है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। कोई खयानत महबूब के ग़ुलामों का मेयार नहीं है। तो मैं बात जो अर्ज़ कर रहा था, मैं अब इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। जाग रहे हैं? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं था, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे हुज़ूर के ग़ुलाम हज़रत अबू मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम 3 ही अशख़ास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक खातून लेटर लेके जा रही मुशरिकीन की तरफ। ख़त, लेटर, ये मुल्की चीज़ें होती है ना, लोग राज फाश करते हैं। हमारा दीन ऐसा दीन है जिसमें हर रंग की बातें पाई जाती हैं। हमारी कमी तो हो सकती है, लेकिन ये जो लोग राज फाश करते हैं ना, ये महबूब के ग़ुलामों का म्यार नहीं है। वो मुल्की हूँ, वो दीन की बातें हूँ, इनका ख्याल करना चाहिए, इन पे
पहरा देना चाहिए ताकि कामयाबी मुसलमानों की कदम चूमे। ये दीन इस्लाम, ये अदलिया, ये क्या है? ये पैगाम तो शुरू से आ रहा है। तो जो बात अर्ज कर रहा हूं, आप फरमाते हैं, आप सरसम ने इरशाद फरमाया, एक औरत जा रही है सवारी पे, तुम उनके पीछे जाओ अपनी सवारियों पर, और वो फुला मकाम पे होगी, और उसके पास एक लेटर है। क्या है? एक लेटर, एक खत जो हजरत हातिब ने लिखा है। लिखा किन की तरफ है? मुशरिकीन की तरफ। जाओ और वो लेटर लेकर आओ। हर तारीफ फरमाते हैं, हम अपने गाड़ियों पे सवार हुए, घोड़ों पर हमने दौड़ा दिए जहां अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि वो वहां होगी। हमने अल्लाह के नबी के जुमले को सच पाया। वो वही थी जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत वहां होगी। आप फरमाते हैं, हमने उसको रोक लिया और कहा, तेरे पास हज़रत आतिब का लेटर है, तू मुशरिकीन की तरफ लेकर जा रही है, वो हमें वापस कर दो। वो कहती, कौन सा लेटर, कौन सा खत? मेरे पास तो कोई लेटर नहीं। हज़रत अली फरमाते हैं, हमने सवारी को रोका, बिठा दिया, उसकी तलाशी ली, हमें लेटर नहीं मिला। आइए मौला कायनात की बात सुने। हज़रत अली शेर खुदा, आप फरमाते हैं, हमें ये बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है, ये हो नहीं सकता कि खत तेरे पास ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है ना, वो गलत नहीं हो सकती। खत तेरे पास है, हम तुझे चांस देते हैं कि वो लेटर हमारे हवाले कर दो। क्यों? कि जिसने भेजा ना वो आम नहीं है। ओदा रुतबा ना कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे, जे दे मुंह विचू रब बोले। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया कि खतून जा रही है, वो फुला मकाम पर होगी, वहीं पाया। फिर दूसरी बात, तू कहती वो लेटर क्या है, खत क्या है? कहा, अगर तू खत नहीं देती, हम भी हुजूर के गुलाम हैं, हमें भेजा गया है, हम फिर तेरी तलाशी लेंगे, तेरे कपड़े भी उतार देंगे, वगरना खत हमारे हवाले कर दो। जब उस खातून ने देखा ना कि ये संजीदा है, उसने अपने बालों का जूड़ा खोला, लेटर निकाल के दे दिया। हज़रत अली फरमाते हैं, हम वो खत लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ना, वहां ताजदार अदालत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आप भी मौजूद थे। पूछा गया, खत किसने लिखा है? आपने फरमाया, हज़रत हातिब ने लिखा। तो सैयदना फारूक आजम क्या शान वाले गुलाम थे, जलाली भी थे। आपने फरमाया, मुझे इजाजत दी जाए, मैं इसका सर काटूं, जिसने ये खत लिखा है इसका सर तन से जुदा कर दूं। आपने हज़रत हातिब को बुलाया और फरमाया, कैसा करें रसूल, ऐ हातिब, तूने ये क्यों किया, ये खत क्यों लिखा? हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं ईमान पे ना रहूं। मैंने ये जो खत लिखा था ना, मैंने मुशरिकीन पे एहसान करना था। किन पर? मुशरिकीन पर। क्यों? इसलिए कि मेरा घर वहां है, मेरे बच्चे वहां हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और कोई इरादा नहीं था। मैंने ये खत इसलिए लिखा कि ये जब खत उन्हें मिलेगा ना, वो मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, मेरे माल को, मेरी अहल को, औलाद को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे अल्लाह के करम से। और या रसूलल्लाह, आपके ये बहुत से गुलाम हैं, सहाबा किराम, इनके भी वो खानदान वहां है, इनके घर वहां है, इनके कबीले वहां है, वो उनको भी तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए मैंने ये उन पे एहसान किया था, मेरा और कोई इरादा नहीं था। आज जिसका कलमा पड़ा है, आपने छात्र में, ऐ हातिब, तूने सच कहा, तेरे दिल में यही इरादा था और कोई राय नहीं थी, तूने सच कहा। और आपने फरमाया, कोई भी शख्स इसके लिए खैर के अलावा कोई कलमा ना कहे। तो ताजदार अदालत बोल उठे, अर्ज करता, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने खयानत तो की है ना, ये खत लिखा खयानत तो की है, आप इजाजत दे मैं इसका सर काटूं। आपने फरमाया, वो मेरे गुलाम, ओ ये मेरा बदरी गुलाम है, बदर की जंग में शरीक हुआ, तुझे पता नहीं? अल्लाह करीम मुतवज्जे हुआ और उसने फरमाया, जितने लोग जंगे बदर में शामिल हुए, मैं सबको बख्श दिया है, ये जो चाहे करे, मैंने बदरी सहाबा किराम को बख्श दिया है। या ये जुमले हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मगफिरत फरमा दी है। जब आपने ये जुमले सुने ना, आपकी आंखों में आंसू थे, आपकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के साथ खयानत न करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत न करना, और वो अमानतें जो तुम्हारे पास रखी जाएं उनमें भी खयानत न करना। अल्लाह करीम जो चंद टूटे फूटे जुमले मैंने अर्ज किए हैं,
हमें सुनकर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये ज़हन में रखना, तुम आम नहीं हो, शान वाले हो, उम्मत मुहम्मदिया में से हो। आए अपना मकाम समझे, अपने तरीके ठीक करें। जहाँ भी रिश्ता है, इस रिश्ते की कदर करते हुए आला मकाम हासिल करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बलाग।